Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. So today, in the continuation of the next class, I'm going to start next topic of chapter number 5, that is coal and petroleum. Today we are going to start with the topic coal. Formation of coal deep inside the earth. अब कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है? Coal is naturally occurring fossilized plant matter consisting mainly of wood. Coal है क्या? It is a fossilized plant matter that consists of mainly wood, जिसमें mainly क्या होता है? wood होता है. केमिकली इट इज़, अगर और केमिकली बात करें, ये तो आपका फिजिकली बता रहे हो, केमिकली बात करें तो इट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पार्शियली पार्शियली मीन्स पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं, हाँ, पार्शियली सल्फर कंबाइंड टुगेदर इन डिफरेंट रेशियोज. कोल क्या है, किसका केमिकली किसका कॉम्बिनेशन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पार्शियली सल्फर. इन सब का कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड रेशियो में ही इससे क्या बनता है? हमारा कोल बनता है. Millions of years ago, the earth at many places was covered with dense forest with lofty trees, including dead wood and vegetable matter along the water bodies, and got buried deeper and deeper under the layers of soil due to disturbance on the surface of the earth due to floods, earthquakes, and erupting volcanoes. In the absence of air, high pressure and high temperature deep under the soil, the vegetable matter slowly and slowly got converted to coal. अभी क्या बहुत सालों पहले क्या है, जैसे कि कुछ डिस्टर्बेंस, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, तो क्या होता है उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट क्या होता है, क्लीन हो जाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का डेथ हो जाता है. तो ये सब क्या है, सॉइल के ऊपर पड़े रहते हैं, सॉइल की टॉपेस्ट लेयर पर पड़े रहते हैं. धीरे 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 क्या होता है, इनके ऊपर सॉइल की एक लेयर, दो लेयर, ऐसी लेयर्स बनती चली जाती हैं. और लेयर्स बनने के बाद उनका जो डिकम्पोजिशन होता है, उसी से फॉर्मेशन होता है किसका? कोल का. This process might have taken more than 300 million years. The slow process of conversion of carbon-rich vegetable matter to coal under the earth is called carbonization. अब आपसे पूछे कार्बनाइजेशन क्या होता है, या फिर जो प्रोसेस होता है डिकम्पोजिशन ऑल का जिससे कोल फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो कार्बनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कार्बन रिच वेजिटेबल मैटर टू कोल. जो आपके डेड एंड डीके मटेरियल्स हैं उनको कोल में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन बोलते हैं. कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, और उससे जो कोल बनता है उसे क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं. द डिपॉजिट ऑफ कोल आर कॉल्ड कोल माइंस, और जहाँ पर ये कोल्स इकट्ठा होते हैं फॉर्म होकर के, दोज आर कॉल्ड एज कोल माइंस, उन्हें क्या बोला जाता है? कोल माइंस बोला. कार्बनाइजेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कोल. फॉसिल फ्यूल्स क्या हो गए आपके? द कोल फॉर्म्ड इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, जो कोल बन गया है उसी को हम लोग फॉसिल फ्यूल बोल रहे हैं अब. एंड जहाँ पर कोल का आपका फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे कलेक्ट हुआ है, डिपॉजिट हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? Our planet Earth is a vast storehouse of resources that are necessary for sustenance of life. These resources are called natural resources. Coal is one such natural resource that is very important to us. Coal is a blackish-colored sedimentary rock that occurs deep inside the earth. It is dug out from the ground by the process of coal mining. It is non-renewable and has a fixed quantity. Its reserves can get depleted, hence it is an inexhaustible resource.
Coal is the most abundant fossil fuel in the world. Its formation began about 300 million years ago by a process called carbonization. At that time, most of the earth was covered with thick forests that grew in swamps. Due to natural processes like floods, these forests were buried under water and soil. Gradually, more and more sediments got deposited on these buried plants. The buried forests got compressed and sank deeper into the ground. The temperature deep inside the earth was high. Due to heat and pressure, the dead plant remains converted into coal. Coal is formed from plants that captured energy from the sun. Thus, sun is the primary source of energy that is obtained from coal. Hence, it is often referred to as buried sunshine. कोल माइंस बोलते हैं. नेक्स्ट इज कोल एज अ फ्यूल एंड इट्स यूजेस. अब कोल की एज अ फ्यूल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोल एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, उसके यूजेस क्या होते हैं. कोल इज अ सॉलिड फ्यूल. वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोल क्या है, एक आपका सॉलिड फ्यूल है. इट इज ब्लैक एंड हार्ड मिनरल. ये देखने में ब्लैक कलर का होता है और टच करने में कैसा होता है, हार्ड होता है. ऑफ वेजिटेबल origin, मोस्टली कंटेनिंग कार्बन विथ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर मिनरल्स. मेनली कोल में क्या होता है, कार्बन होता है. इट इज कंबस्टिबल. कंबस्टिबल का मतलब क्या है, ये जल सकता है, इसको जला सकते हैं हम. एंड यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और किस लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल को आपने यूज करते हुए कई जगह पर देखा होगा. When coal is burnt in the presence of oxygen, जब कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with heat, that is heat is nothing but your energy. आपने कोल को कई जगह पे जलाते हुए देखा होगा तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है. उसमें फ्लेम्स नहीं दिखती हमें बट उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है. दैट हीट वी यूज इट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. और साथ में क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है. कोल बीइंग अ बिग सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड. ये एज अ फ्यूल यूज होता है खाना बनाने के लिए. फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है. एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेरियस इंडस्ट्रीज, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में. Some of its products like benzene, phenol, naphthalene and others are used in various ways in chemical industries. इसके कुछ प्रोडक्ट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं. At one time coal was largely used to power steam engine. ये तो आपने मूवीज़ वगैरह में, पिक्चर्स वगैरह में, अपने बुक्स में बहुत जगह देखा होगा. स्टीम इंजन, पहले ट्रेन्स बनी रहती हैं, ट्रेन्स की पिक्चर्स बनी रहती है, उसमें से यहाँ से आपका धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, स्मोक दिखाई पड़ता है. सो पहले क्या होता था, स्टीम इंजन में भी क्या यूज़ होता था, कोल ही यूज़ होता था एज अ फ्यूल. तो उनको रन करने के लिए, इंजन को रन करने के लिए एज अ फ्यूल क्या यूज़ करते थे, कोल का यूज़ करते थे. Coal has been used for heating and cooking since ancient times. Later, it was used to produce steam to run railway engines. Today, it is primarily used in thermal power plants to generate electricity and as a heating fuel in industries.
Apart from being used as a fuel, coal नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. अब कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं. व्हेन कोल इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक. एंड स्मोक, कोई पूछ ले स्मोक क्या होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन पार्टिकल्स. स्मोक है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस विच इज़ अ बिग कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. जब हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और इसके साथ में कुछ पॉइजनस गैसेस दैट कॉजेस एयर पोल्यूशन, जिनकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है. Pollution from burning coal has been the reason for ban on it being used as a fuel in homes, bakeries, restaurants and other places. इसी पोल्यूशन की वजह से क्या है, कोल पर अब बैन लग गया है कि इसको हम लोग हाउस होल्ड चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं. On strong heating of mined coal in a closed retort in the absence of air, it breaks down to give coal gas, coal tar, ammonia gas. Ammonia gas is nothing but HNO3, a nitrogen hydrogen product, and itself changes to coke. अभी क्या है, इसको हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या अपने आप को ब्रेक डाउन करता है और किस में कन्वर्ट होता है, कोल गैस में, कोल टार में, एमोनिया गैस में एंड कोक में. These products are obtained by the process of destructive distillation. और इन प्रोडक्ट्स को जो हम ऑब्टेन करते हैं किस प्रोसेस से करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से इनको हम ऑब्टेन करते हैं. द प्रोसेस अबाउट विच यू विल स्टडी अंडर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में जब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम पढ़ेंगे कि पेट्रोल को कैसे रिफाइन किया जाता है, वहाँ पर इस प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज कोल गैस. अब कोल गैस क्या है, कोल गैस इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ कोल. पहला कोल गैस क्या है, आपका पहला प्रोडक्ट है कोल का जो हमने यहाँ पे अभी लिस्ट आउट किया था. कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कोल गैस क्या है, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के छोटे से पार्ट का कॉम्बिनेशन है. ऑल दीज गैसेस आर हाईली इन्फ्लेमेबल. हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब बहुत जल्दी फायर कैच करती हैं. एंड दे बर्न इन एयर टू गिव आउट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. और ये जल करके हमें क्या देती हैं, हीट एंड लाइट प्रोवाइड करती हैं. इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू. और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत हाई होती है. अब कैलोरीफिक वैल्यू होता ही क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू किसे बोलते हैं, अगर आप एक यूनिट फ्यूल ले लो, लेट अस सपोज दैट वी हैव टेकन फ्यूल ऑफ 1 यूनिट. 1 यूनिट आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो कि आपने 1 ग्राम लिया है, 1 kg लिया है, 500 ग्राम्स लिया. 1 यूनिट किसी के भी इक्वल हो सकता है. आपने डिफरेंट फ्यूल सेम अमाउंट में ले लिए, ठीक है. 1 यूनिट फ्यूल ले लिया हमने. अब उसको क्या करना है, हमें इसको बर्न करना है. इसको बर्न करने के बाद द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इसको बर्न करने के बाद अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग दिस 1 यूनिट ऑफ फ्यूल. अब क्या होगा, सब में से सेम अमाउंट ऑफ हीट तो प्रोड्यूस नहीं होगा, किसी में से कम प्रोड्यूस होगा, किसी में से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. सो द मोर amount of heat is generated, the more is its calorific value. जितना ज़्यादा इसमें से हीट जनरेट होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है. सो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है आपका, एक यूनिट फ्यूल को बर्न करने में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स योर कैलोरीफिक वैल्यू. इससे हम फ्यूल की क्वालिटी चेक करते हैं, क्योंकि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इट मीन्स इट प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ हीट. जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ही ज़्यादा क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है.
So calorific value of a fuel is the you have to learn this also. Calorific value of a fuel is the amount of heat generated on burning 1 unit of fuel in the air. More the calorific value of a fuel, better is the fuel. जितना ज़्यादा किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो फ्यूल उतना ही अच्छा होगा. Coal gas is used in industries as a fuel, and since it includes hydrogen gas, it is used as reducing agent. इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसे हम एज अ reducing agent भी यूज़ करते हैं. Coal gas was invented by British William Murdoch in the year 1792. ठीक है, इसे और कोल गैस इज यूज्ड एज एन रिड्यूसिंग एजेंट. कोल गैस को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं. Next one is coal tar. Coal tar is obtained on heating coal in absence of air. कोल टार अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो आपने कभी रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह देखा होगा तो साइड में ड्रम्स वगैरह में बर्न करके ब्लैक कलर का लिक्विड फॉर्मेशन होता है जो रोड पर डाला जाता है. दैट इज़ योर कोल टार. वही आपका क्या होता है, कोल टार होता है. इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर. इसको हम लोग, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब कोल को हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में. इट इज़ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल. ये क्या है, एक थिक ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड है जिसकी स्मेल कैसी होती है, अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं होती है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड्स. ये कम से कम 200 कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर है. एंड दोज सम कार्बन कंपाउंड्स आर बेंजीन, टोलीन, फिनोल, नाफ्थलीन and many other products which are used in medicines. Cosmetics, inks, dyes, detergents, paints, pesticides, plastic, synthetic fibers and various solvents. Coal tar is also used in surfacing roads. Coal tar का यूज़ किस में किया जाता है, रोड्स की सरफेसिंग में. and waterproofing roofs. वाटरप्रूफ रूफ बनाने के लिए, वाटरप्रूफ छत बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. However, nowadays bitumen, a petroleum product, bitumen is the product of petroleum, ये कोल का प्रोडक्ट नहीं है, is used as a sand and grit बाइंडिंग एजेंट फॉर सरफेसिंग रोड्स. आजकल कोल टार की को रिप्लेस करके हम लोग किसको यूज़ कर रहे हैं, बिटुमेन का यूज़ करते हैं, विच इज़ अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर सरफेसिंग रोड्स. रोड सरफेसिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कोक. कोक इज ऑल्सो अनदर प्रोडक्ट ऑफ कोल. कोक इज सॉलिड ग्रे सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर. जब कोल को हम एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं तो कोक की फॉर्मेशन होती है. While heating coal, volatile substances get evaporated, leaving behind coke with pores in it. जब हम लोग कोल को हीट करते हैं तो वोलाटाइल मीन्स विच कैन गेट इवेपोरेटेड, जिनके वेपर्स बनकर जो इवेपोरेट हो जाता है. तो जब हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी हीट कोल देन द वोलाटाइल सब्सटेंसेस गेट इवेपोरेटेड. वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, भाप बन करके उड़ जाना. लिविंग बिहाइंड कोक विद द पोर्स इन इट. और उसमें क्या क्या छोड़ के चले जाते हैं, कोक हमारे पास लास्ट में रह जाता है और उसमें पोर्स. पोर्स मतलब क्या है, छोटे छोटे गड्ढे से, ऐसे होल से उसमें रह जाते हैं. थ्रू विच द गैसेस माइट हैव स्केप्ड. और ये हो सकता है कि इन्हीं पोर्स से क्या है, जो गैसेस बाहर रिलीज आउट हुई हैं, जो बाहर इवेपोरेट हुई हैं, इन्हीं पोर्स के थ्रू ही वो गैसेस स्केप किए हैं. कोक इज़ मोर देन 90% कार्बन. कोक में कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ अबाउट 90% एंड इज़ अ वेरी गुड फ्यूल विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू. और इसकी भी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, बहुत हाई है. इट मीन्स इट ऑल्सो जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट.
Coke is used as reducing agent in refining the iron ore. कोक का यूज़ किस में करते हैं हम लोग? एज ए reducing एजेंट यूज़ करते हैं आयरन ओर की रिफाइनिंग में. Many other metals and in the manufacture of steel, coke is a better fuel since it gives out more heat and less of gases, hence it is non-polluting. आपसे पूछ लिया जाए नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है कोल का, तो कौन सा है? कोक है. नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल कौन सा है? वो कौन सा है? कोक है. वाई? बिकॉज इट गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट प्रोड्यूसिंग मोर पॉइजनस गैसेस. ज़्यादा पॉइजनस गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता है और हीट का अमाउंट इसमें ज़्यादा रहता है. Next is ammonia gas or carbon dioxide. This is the fourth product of coal. Ammonia gas given out in the process of heating coal is passed through water and treated with sulfuric acid to produce ammonium sulfate. एमोनिया गैस को क्या किया जाता है? इस प्रोसेस में उस कोल को हीट करते हैं और उसको किस में पास करते हैं? वाटर के थ्रू पास करते हैं. एंड आफ्टर पासिंग इट थ्रू वाटर इट इज़ ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड. इसको क्या करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है. और तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है? एमोनियम सल्फेट. एंड एमोनियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र. एमोनियम सल्फेट का यूज़ कैसे किया जाता है? इट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र. Ammonia is commercially combined with carbon dioxide under high pressure and high temperature to form यूरिया. अब यूरिया की फॉर्मेशन पूछ ले तो कैसे होती है? एमोनिया को कंबाइन करते हैं हम किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. ये कंडीशन हमें उसे देनी पड़ती है. द मोस्ट कॉमन एंड अ गुड फर्टिलाइजर. यूरिया इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर. Coal is also processed to obtain various other products. Coke is a black-colored, highly porous, tough substance obtained by the process of coking. It is an almost pure form of carbon and is used in extracting metals and manufacturing steel. Coal tar, a black, viscous liquid with unpleasant odor, is also obtained from coal. It is a mixture of 200 substances. You must have commonly seen coal tar being used for paving roads. It is also used to manufacture naphthalene balls, drugs, dyes, perfumes, explosives, and photographic and roofing materials. Coal gas is a flammable gaseous fuel obtained during the process of coking. It was used for the first time in the early 18th century in London and New York for street lighting. Today, it is mainly used as a heating fuel in industries. It is supplied through pipes to industries situated near the coal processing plants. Due to overuse, the known reserves of coal are likely to get depleted in a few hundred years. Moreover, coal is mainly composed of carbon. Hence, on burning in air, it produces a lot of carbon dioxide. Excessive burning of coal has become a major cause of air pollution and global warming. To reduce these issues, it is imperative that we must use coal carefully.